introduction, an interpersonal relationship is an association between two or more people that may range from fleeting to enduring. एक अंतर्व्यक्तिय संबंध दो या अधिक लोगों के बीच का ऐसा जुड़ाव है जो बहुत कम समय के लिए भी हो सकता है और लंबे समय तक भी चल सकता है। A relationship is normally viewed as a connection between two individuals, such as a romantic or intimate relationship or a parent-child relationship. संबंध आमतौर पर दो व्यक्तियों के बीच बनाए गए जुड़ाव के रूप में देखा जाता है, जैसे रोमांटिक घनिष्ठ संबंध या माता-पिता और बच्चे का संबंध। Individuals can also have relationships with groups of people, such as the relation between a family and relatives or a mayor and a town. व्यक्ति लोगों के समूहों से भी संबंध रख सकता है, जैसे एक परिवार और उसके रिश्तेदारों के बीच संबंध या किसी मेयर और पूरे शहर के बीच संबंध। Finally, groups or even nations may have relations with each other, though this is a much broader domain than that covered under the topic of interpersonal relationship. अंततः समूह या राष्ट्र भी एक दूसरे से संबंध रख सकते हैं, हालांकि यह विषय अंतर्व्यक्तिय संबंधों की सामान्य सीमा से कहीं बड़ा है। These intimate relationships are, however, only a small subset of interpersonal relationships. घनिष्ठ या निजी संबंध अंतर्व्यक्तिय संबंधों की केवल एक छोटी सी श्रेणी है। Interpersonal relationships can also include friendships, such as relationships involving individuals providing relational care to marginalized persons. अंतर्व्यक्तिय संबंधों में दोस्ती भी शामिल होती है, जैसे वे संबंध जहां कोई व्यक्ति हाशिए पर मौजूद लोगों को भावनात्मक या सामाजिक सहारा देता है। These relationships usually involve some level of interdependence. इन संबंधों में आमतौर पर किसी न किसी स्तर पर परस्पर निर्भरता शामिल होती है। People in a relationship tend to influence each other, share their thoughts and feelings and engage in activities together. संबंध में जुड़े लोग एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अपने विचार और भावनाएं साझा करते हैं और कई गतिविधियां एक साथ करते हैं। Because of this interdependence, most things that change or impact one member of the relationship will have some level of impact on other member. इसी परस्पर निर्भरता के कारण संबंध में किसी एक व्यक्ति के जीवन में होने वाला परिवर्तन दूसरे व्यक्ति को भी किसी हद तक प्रभावित करता है। Exceptional interpersonal relationship skill is necessary for both personal and professional success. At the very least, relationship skills are for the purpose of making a connection with another human being. उत्कृष्ट अंतर्व्यक्तिय कौशल व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में सफलता के लिए आवश्यक है। कम से कम ये कौशल किसी अन्य व्यक्ति के सार्थक कनेक्शन बनाने के लिए जरूरी होते हैं। In the chapter, various aspects of interpersonal counseling and its importance for the counselor are covered. इस अध्याय में अंतर्व्यक्तिय काउंसलिंग के विभिन्न पहलुओं और एक काउंसलर के लिए इसकी महत्ता को विस्तार से बताया गया है। Healthy relationships are built on a foundation of secure attachment and are maintained with love and purposeful positive relationships behavior. स्वस्थ रिश्ते सुरक्षित जुड़ाव पर आधारित होते हैं और प्यार व सकारात्मक संबंध व्यवहारों से बनाए रखते जाते हैं। Additionally, health relationships can be made of flourish. इसके अलावा स्वस्थ रिश्तों को और भी विकसित व खिलने फूलने लायक बनाया जा सकता है। Positive psychologists are exploring what makes existing relationships flourish and what skills can be taught to people to enhance their existing and future personal relationships. सकारात्मक मनोवैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ते कैसे बेहतर बनते हैं और कौन सी कौशल लोगों
को सिखाई जा सकती है ताकि उनके वर्तमान और भविष्य के रिश्ते मजबूत हों। Positive psychologists use the term flourishing relationships to describe interpersonal relationships that are not merely happy but instead characterized by intimacy, growth, and resilience. सकारात्मक मनोवैज्ञानिक फलते फूलते रिश्ते शब्द उन रिश्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सिर्फ खुश नहीं होते बल्कि उनमें निकटता, विकास और मानसिक मजबूती पाई जाती है। Flourishing relationship also allow a dynamic balance between focus on the intimate relationships and focus on other social relationships. फलते फूलते रिश्ते निकट संबंधों और अन्य सामाजिक संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखने की क्षमता भी देते हैं। Humans are social beings and much of what we are is a product of our relationship with others. मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं और हम जो भी हैं उसका बड़ा हिस्सा हमारे दूसरों के साथ संबंधों का परिणाम है। Psychological problems are increasingly coming to be viewed as primarily interpersonal in nature. मनोवैज्ञानिक समस्याओं को अब अधिकतर अंतर व्यक्तिगत रिश्तों से जुड़ी समस्याओं के रूप में देखा जाता है। However, it is only recently that all approaches have come to place the interpersonal in the forefront. हालांकि हाल के वर्षों में भी विभिन्न उपचार पद्धतियों ने रिश्तों को मुख्य केंद्र में रखना शुरू किया है। Now in psychodynamic area, object relation theory, attachment theory, and self psychology hold that psychological problems are primarily a matter of disturbed relationship with other people, and therapy is primarily a matter of repairing such relationships. अब मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में ऑब्जेक्ट रिलेशन सिद्धांत, अटैचमेंट थ्योरी और सेल्फ साइकोलॉजी ये सभी मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक समस्याएं असल में खराब रिश्तों से उत्पन्न होती हैं और थेरेपी का मुख्य उद्देश्य ऐसे रिश्तों को सुधारना होता है। As cognitive therapist, example Arok Back see personality disorder as dysfunctional interpersonal strategies that have been learned in an interpersonal matrix. जैसे संज्ञानात्मक उपचारात्मक उदाहरण आरोन बेक व्यक्तित्व विकारों को गलत तरीके से सिखाए गए अंतर व्यक्तिगत व्यवहार मानते हैं जो व्यक्ति ने अपने सामाजिक माहौल से सीखे होते हैं। इन द ह्यूमनिस्टिक व्यू, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑल्सो एम्फसाइजेस इंटरपर्सनल कनेक्शंस। मानवतावादी दृष्टिकोण में गेस्टाल्ट सिद्धांत भी रिश्तों और आपसी जुड़ाव पर जोर देता है। Hence, it should not be surprising that many therapists concluded that abnormal behavior is best understood by analyzing our relationship past present with other people. इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कई चिकित्सकों ने माना है कि असामान्य व्यवहार को समझने का सबसे अच्छा तरीका व्यक्ति के पिछले और वर्तमान रिश्तों का विश्लेषण करना है। So interpersonal factors refer to the social chemistry or dynamic of relationship between the counselor and the client. इसलिए अंतर व्यक्तिगत तत्व का अर्थ होता है काउंसलर और क्लाइंट के बीच की सामाजिक समझ, जुड़ाव और उनकी संबंध गतिशीलता। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। The roots of interpersonal approach lie in the earlier developments in the psychodynamic movement. अंतर व्यक्तिगत दृष्टिकोण की जड़ें मनोदैनिक आंदोलन के शुरुआती विकास में मिलती हैं। According to Adler, people inherently social beings are motivated primarily by the desire to belong to and participate in a group. एडलर के अनुसार मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है और उसकी मुख्य प्रेरणा किसी समूह से जुड़ने और उसमें भाग लेने की होती है। एरिक्सन also extended the interpersonal aspect of human beings. एरिक्सन ने भी मनुष्य के व्यक्तित्व में रिश्तों की भूमिका को और आगे बढ़ाया। सुलाइवन offered a comprehensive and systematic theory of personality that was explicitly interpersonal in nature. सुलीवन ने व्यक्तित्व का एक विस्तृत और व्यवस्थित सिद्धांत दिया जिसमें रिश्तों को मानव व्यक्तित्व का मुख्य आधार माना गया। Interpersonal accommodation is a process in which two people develop patterns of communication
and interaction that enables them to attain common goals, meet mutual needs, and build a satisfying relationship. इंटरपर्सनल accommodation वह प्रक्रिया है जिसमें दो लोग आपसी संवाद और व्यवहार की ऐसी शैली बनाते हैं जो उन्हें साझा लक्ष्य प्राप्त करने, जरूरतें पूरी करने और संतोषजनक रिश्ता बनाने में मदद करती है. Interpersonal therapy was first developed as a theoretical placebo for use in psychotherapy research by Gerald क्लारमैन एट ऑल. इंटरपर्सनल थेरेपी को सबसे पहले जेराल्ड क्लरमैन और साथियों ने मनोचिकित्सा अनुसंधान में एक सैद्धांतिक मॉडल के रूप में विकसित किया. IPT was, however, found to be quite effective in the treatment of several psychological problems. लेकिन बाद में IPT कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं के उपचार में बहुत प्रभावी साबित हुई. IPT was later developed in the 70s and 80s as a treatment for adults who were diagnosed with moderate or severe non-delusional clinical depression and other psychological problems. 70 और 80 के दशक में आईपीटी को और विकसित किया गया ताकि यह वयस्कों में मध्यम या गंभीर अवसाद जो भ्रम आधारित न हो तथा अन्य समस्याओं के इलाज में उपयोग हो सके. IPT takes structure from psychodynamic psychotherapy but also from contemporary cognitive behavioral approaches because it is time limited. IPT की संरचना मनोदैनिक थेरेपी से ली गई है लेकिन यह समय सीमित होने के कारण इसमें आधुनिक संज्ञानात्मक व्यवहारवादी तकनीकों का भी उपयोग होता है. थ्योरीज एंड एम्पायरिकल रिसर्च, सिद्धांत और प्रायोगिक अनुसंधान. Researchers are developing an approach to couples therapy that moves partners from patterns of repeated conflict to patterns of more positive, comfortable exchanges. शोधकर्ता कपल थेरेपी का ऐसा तरीका विकसित कर रहे हैं जो पार्टनर्स को बार बार होने वाले झगड़ों से निकालकर सकारात्मक और आरामदायक बातचीत के पैटर्न की ओर ले जाए. गोल्स ऑफ थेरेपी इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. इस थेरेपी का उद्देश्य सामाजिक और अंतर व्यक्तिगत कौशलों का विकास करना है. एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड एंड शेयरिंग एप्रिसिएशन फॉर अ पार्टनर इज द प्राइमरी मीन्स फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. कृतज्ञता व्यक्त करना और अपने साथी की सराहना करना सकारात्मक रिश्ते बनाने का मुख्य तरीका है. पॉजिटिव मैरिटल काउंसलिंग ऑल्सो एम्फेसाइजेस माइंडफुलनेस. सकारात्मक विवाह परामर्श में माइंडफुलनेस पर जोर दिया जाता है. माइंडिंग रिलेशनशिप्स. द माइंडफुलनेस थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप शो हाउ क्लोजनेस इन रिलेशनशिप्स में बी एनहांस्ड. रिश्तों की माइंडफुलनेस थ्योरी बताती है कि रिश्तों में निकटता कैसे बढ़ाई जा सकती है. माइंडिंग इज द रेसिप्रोकल नोइंग process involving the non-stop interrelated thoughts, feelings and behaviors of persons in a relationship. माइंडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें दो लोग एक दूसरे को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं. उनके विचार, भावनाएं और व्यवहार एक दूसरे से जुड़े होते हैं. 5 components of minding include 5 घटक माइंडिंग के. knowing and being known, seeking to understand the partner, जानना और जाना जाना, अपने साथी को समझने की कोशिश करना. मेकिंग रिलेशनशिप एनहेंसिंग एट्रीब्यूशन फॉर बिहेवियर्स गिविंग द बेनिफिट ऑफ द डाउट. रिश्ते को सुधारने वाले अर्थ निकालना यानी साथी को शक का लाभ देना. एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स. स्वीकार करना और सम्मान देना, सहानुभूति और सामाजिक कौशल का उपयोग करना. मेंटेनिंग रेसिप्रोसिटी, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रिलेशनशिप एनहेंसमेंट. पारस्परिकता बनाए रखना, रिश्ते को बेहतर बनाने में सक्रिय भागीदारी. कंटिन्यूटी इन माइंडिंग, परसिस्टिंग इन माइंडफुलनेस. निरंतरता, लंबे समय तक माइंडफुलनेस बनाए रखना. लव यानी प्रेम. लव गिव्स डेप्थ टू ह्यूमन रिलेशनशिप्स. इट ब्रिंग्स people closer to each other and makes people think expansively about themselves and the world. प्रेम रिश्तों को गहराई देता है. यह लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है
और स्वयं व दुनिया के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यापक करता है। Psychologist Robert Sternberg theorizes that love is a mix of three components. मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार प्रेम तीन तत्वों का मिश्रण है, पैशन और फिजिकल अट्रैक्शन यानी शारीरिक आकर्षण, इंटीमेसी और फीलिंग ऑफ क्लोजनेस यानी अंतरंगता यानी भावनात्मक निकटता, कमिटमेंट इन्वॉल्विंग द डिसीजन टू इनिशिएट एंड सस्टेन अ रिलेशनशिप, प्रतिबद्धता यानी रिश्तों को शुरू करने और निभाने का निर्णय। The presence of all three components characterizes consummate love, the most durable type of love. जब प्रेम में ये तीनों मौजूद हों तो उसे पूर्ण प्रेम कहा जाता है। यह सबसे लंबे समय तक टिकने वाला प्रेम माना जाता है। In addition, the presence of intimacy and passion in marital relationships predicts marital satisfaction. साथ ही वैवाहिक रिश्तों में अंतरंगता और पैशन का होना विवाह संतुष्टि से जुड़ा है। Also, commitment is the best predictor of relationship satisfaction, especially in long-term relationships. इसके अलावा प्रतिबद्धता लंबे रिश्तों में संतुष्टि का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। Positive consequences of being in love include increased self-esteem and self-efficacy. प्रेम में होने के सकारात्मक प्रभावों में आत्मसम्मान और आत्मक्षमता का बढ़ना शामिल है। न्यूरोबायोलॉजी ऑफ इंटरपर्सनल कनेक्शंस, अंतर व्यक्तिगत संबंधों की न्यूरोबायोलॉजी। देयर इज एन emerging body of research across multiple disciplines investigating the neurobiological basis of attachment and the pro-social emotions and behaviors that are the prerequisites for healthy adult relationships। कई क्षेत्रों में यह शोध यह समझने में लगा है कि जुड़ाव यानी अटैचमेंट और सामाजिक भावनाएं व्यवहार मस्तिष्क में कैसे विकसित होते हैं, जो स्वस्थ वयस्क रिश्तों के लिए जरूरी होते हैं। द सोशल एनवायरनमेंट मेडिटेटेड अटैचमेंट इन्फ्लुएंसेस द मैच्योरेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन अ चाइल्ड्स ब्रेन। बच्चे का सामाजिक वातावरण खासकर उसके शुरुआती जुड़ाव दिमाग के विकास को प्रभावित करता है। दिस माइट एक्सप्लेन हाउ इन्फेंट अटैचमेंट अफेक्ट्स अदर एडल्ट इमोशनल हेल्थ। यह बताता है कि शैशवावस्था का जुड़ाव वयस्कता के भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। इंटरपर्सनल काउंसलिंग IPC। Interpersonal counseling derives directly from IPT, but it's briefer in the number and duration of sessions. Interpersonal counseling IPT से उत्पन्न हुई है, लेकिन इसमें सत्रों की संख्या और अवधि कम होती है। It is designed for patients who are in distress and have symptoms due to current stressors in their lives, but who do not have serious psychiatric disorders। यह उन लोगों के लिए बनाई गई है जो वर्तमान तनाव के कारण परेशान हैं, लेकिन जिन्हें गंभीर मानसिक बीमारियां नहीं हैं। इंटरपर्सनल काउंसलिंग IPC is a derivative form of interpersonal therapy। IPC IPT का संक्षिप्त और सरल रूप है। IPT consists of roughly 12 to 16 sessions, each lasting 50 to 60 minutes and is suggested for conditions like depression and personality disorders। IPT में लगभग 12 से 16 सत्र होते हैं, प्रत्येक 50 से 60 मिनट का, और यह अवसाद या व्यक्तित्व विकारों के लिए उपयोग किया जाता है। IPC is shorter and usually consists of 6 sessions of not more than half an hour। IPC से छोटा होता है, आमतौर पर 6 सत्र, हर सत्र लगभग आधे घंटे का। Within the IPC framework, psychological distress is viewed as having 3 components। IPC मॉडल में मानसिक परेशानी को 3 हिस्सों में समझा जाता है। सिम्टम फॉर्मेशन, सोमैटिक साइंस एंड सिम्टम्स, एग्जाम्पल फैटिक, स्लीप डिस्टर्बेंस, हेडेक्स। लक्षण बनना जैसे थकान, नींद की कम समस्या, सिर दर्द आदि। शारीरिक लक्षण, सोशल एंड इंटरपर्सनल रिलेशन, सामाजिक और अंतर व्यक्तिगत संबंध। पर्सनैलिटी एंड्यूरिंग ट्रेट्स and behaviors which may contribute to predisposition to symptom episodes। व्यक्तित्व लंबे समय से बने गुण और जो समस्या की संभावना बढ़ा सकते हैं। गोल्स ऑफ इंटरपर्सनल काउंसलिंग IPC के लक्ष्य है
The goals of IPC are the intervene to IPC का उद्देश्य हस्तक्षेप करके रिड्यूस साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, रिस्टोर मोरल एंड इम्प्रूव सेल्फ स्टीम, मानसिक लक्षणों को कम करना, मनोबल बढ़ाना और आत्मसम्मान सुधारना, improve the quality of the patient, social adjustment and interpersonal relations. Interpersonal therapy, interpersonal psychotherapy. Interpersonal therapy is a time limit counseling that focuses on the interpersonal context and on building interpersonal skills. इंटरपर्सनल थेरेपी एक समय सीमित काउंसलिंग है जो रिश्तों के संदर्भ और इंटरपर्सनल स्किल्स को विकसित करने पर केंद्रित होती है. Where interpersonal psychotherapy (IPT) is based on the belief that interpersonal factors may contribute heavily to psychological problems. Interpersonal psychotherapy (IPT) इस विश्वास पर आधारित है कि रिश्तों में होने वाली समस्याएं मानसिक परेशानियों का बड़ा कारण बन सकती हैं. It is commonly distinguished from other forms of therapy in its emphasis on interpersonal processes rather than intrapsychic process. यह अन्य थेरेपी से अलग है क्योंकि इसमें व्यक्ति के मन के भीतर पर नहीं बल्कि उनके रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है. In interpersonal counseling and therapy, counselor or therapist work with clients over issues like depression and other disorders in context of the way symptoms have formed and the way they affect social functioning. Interpersonal counseling में काउंसलर डिप्रेशन और अन्य समस्याओं पर इस आधार पर काम करते हैं कि लक्षण कैसे बनने लगे और वे सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं. At the same time, both IPT and IPC evaluate how social functioning is affected by things like arguments, transitions in roles, experience of grief, or by few or poor interpersonal relations. IPT और IPC यह भी देखते हैं कि झगड़े, रोल बदलना, किसी का खोना या कमजोर रिश्ते सामाजिक जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं. इंटरपर्सनल थेरेपी फोकसेस ऑन द प्रेजेंट. इट कैन ऑल्सो इम्प्रूव द क्लाइंट्स फ्यूचर through increased awareness of preventive measures and strengthens coping skills. Interpersonal therapy वर्तमान पर ध्यान देती है लेकिन यह भविष्य को भी बेहतर बनाती है क्योंकि यह अवेयरनेस और कॉपिंग स्किल्स को मजबूत करती है. Interpersonal psychotherapy typically proceeds in several stages. Interpersonal psychotherapy आमतौर पर कई चरणों में चलती है. In the initial stages, therapeutic goals typically include diagnosis, completing the requisite inventories, identifying the patient's major problem areas, and creating a treatment contract. शुरुआती चरणों में डायग्नोसिस करना, जरूरी फॉर्म भरवाना, प्रमुख समस्या ढूंढना और ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना शामिल होता है. इंटरपर्सनल काउंसलिंग एंड थेरेपी इज अ शॉर्ट टर्म सपोर्टिव साइकोथेरेपी that focuses on the connection between interactions between people and the development of a person's psychiatric symptom. Interpersonal counseling एक छोटी अवधि की सपोर्टिव थेरेपी है जो यह समझने पर केंद्रित होती है कि रिश्ते और बात व्यवहार मानसिक लक्षणों को कैसे प्रभावित करते हैं. Goals of interpersonal psychotherapy (IPT). IPT aims to change the person's interpersonal behavior by fostering adaptation to current interpersonal roles and situations. IPT का लक्ष्य यह है कि व्यक्ति अपने मौजूद रिश्तों और भूमिकाओं के अनुसार खुद को बेहतर ढंग से ढाल सके. IPT emphasizes the ways in which a person's current relationships and social context cause or maintain symptoms rather than exploring the deep-seated sources of the symptoms. IPT यह देखता है कि वर्तमान रिश्ते और सामाजिक माहौल लक्षणों को कैसे पैदा या बनाए रखते हैं, न कि उनके गहरे कारण क्या हैं. Its goals are rapid symptom reduction and improved social adjustment.
इसका मुख्य उद्देश्य है लक्षणों को जल्दी कम करना और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाना। A frequent byproduct of IPT treatment is more satisfying relationships in the present. IPT का अच्छा परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के वर्तमान रिश्ते ज्यादा स्वस्थ और संतोषजनक बन जाते हैं। Interpersonal therapy was initially developed to treat adult depression. इंटरपर्सनल थेरेपी पहले वयस्कों के डिप्रेशन के लिए बनाई गई थी। It has since been applied to the treatment of depression in adolescent, the elderly and people with HIV. इसके बाद इसे किशोरों, बुजुर्गों और HIV से पीड़ित लोगों के डिप्रेशन में भी उपयोग किया गया। There is an IPT conjoint यानी couple therapy for marital disputes. वैवाहिक विवादों के लिए IPT की कपल थेरेपी भी है। IPT has also been modified for the treatment of substance abuse, bulimia, depressed pregnant women and prolonged grief. IPT को नशे की समस्या, बुलिमिया, गर्भवती महिलाओं के डिप्रेशन और लंबे समय से चले आ रहे दुख के लिए भी बदला गया है।